Hey kids, very good morning to all. Welcome to Shivaji Group of Institution. Let's begin our preschool online classes. Kids, today's date is 23rd August 2020 and day is Sunday. Hey kids, welcome to your class. As you all know that we start our class with English recitation. So kids, today we will recite an English rhyme, Humpty Dumpty. So kids, stand up on your place and put your hand on your waist. And let's start this rhyme. Humpty Dumpty sat on a wall. Humpty Dumpty sat on a wall. Humpty Dumpty had a great fall. Humpty Dumpty had a great fall. All the king's horses and all the king's men. All the king's horses and all the king's men. But couldn't put Humpty together again. But couldn't Humpty put together again. Kids, let's repeat one more time. Humpty Dumpty sat on a wall. Humpty Dumpty had a great fall. All the king's horses and all the king's men. All the king's horses and all the king's men. But couldn't put Humpty together again. But couldn't put Humpty together again. Thank you. I hope you have enjoyed this rhyme. Hey kids, welcome back to next class, and that is English written. Kids, take out your English notebook and open the page where I have done the setting of 23rd August 2020 and day is Sunday. Kids, in our last class we have learned to do some exercises. मीन्स हमने कुछ एक्सरसाइजेस की थी A to H से रिलेटेड, क्योंकि हमने A से लेकर H तक के सारे वर्क कर लिए हैं, H का फॉर्मेशन कर लिया है. तो अब हमको क्या करना है बच्चों, A से लेकर H तक अच्छे से प्रैक्टिस करनी है ताकि हम इसे अच्छे से फॉर्मेशन को विदाउट एनी हेल्प कर सके. उसके बाद हम इससे रिलेटेड एक एक्सरसाइज भी करेंगे. तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं बच्चों, A to H मीन्स A से लेकर H तक का पूरा फॉर्मेशन कर देंगे. चलिए बच्चों स्टार्ट करें. हमने आज ब्लॉक नहीं बनाया है, हम आपको एक्सरसाइज बता रहे हैं, रिवीजन करा रहे हैं. आपको आपकी ब्लॉक की नोटबुक में करना है, आपको अच्छे से पता है. आपको वो अपर और बॉटम लाइन दोनों टच करनी है. तो फिर लेट्स स्टार्ट. अप डाउन कट मेक ए. ए बन गया. अभी नेक्स्ट क्या लिखना है बच्चों, बॉटम आफ्टर ए इट्स बी. वन मैन टू बिग फैट स्टमक मेक बी. A, then B. Again now. C. Down and stop make C. A, B, then C. अब क्या करना है बच्चों, B. One man, one big fat stomach make D. A, B, C, D. What comes after D? It's E. One man wearing hat, coat and shoe. मीन्स E बन गया बच्चों. अब चलिए स्टार्ट करिए फिर से पढ़ना. A, B, C, D and then E. Now kids, what comes after E? F. One man wearing hat, coat and no shoe, naughty boy. F. मीन्स किड्स इसमें हमें इसके शू को ड्रॉ नहीं करना है. मीन्स हमें इसमें लास्ट की एक स्लीपिंग लाइन ड्रॉ नहीं करनी है. ये सिर्फ F का फॉर्मेशन है, तो F में सिर्फ 2 लाइन रहेगी. नेक्स्ट G. What comes after F? G. Make C, holding a stick, make G. A, B, C, D, E, F and then G. Kids, what comes after G? It's H. One man, two men, hello, hello, make H. Kids, यहाँ पे हमने ये पेज बुक का कंप्लीट कर लिया. अभी हमको नेक्स्ट पेज करना है. इसको एक बार फिर से रीड करते हैं. स्टार्ट करिए. A, B, C, D, E, F, G and H. Let's come to the next page. Now we have to complete this exercise. अब हम क्या करेंगे बच्चों, ये एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे. इसमें हमें क्या करना है, इसमें आपको कुछ मिसिंग लेटर्स दिए हुए हैं, इसमें हमें फिल इन करना है. मीन्स जो लेटर्स यहाँ पे मिसिंग हैं हमें उसको फिल करके इसे कंप्लीट करना है. तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं. As you all know, what comes after A? It's B. One man, two big fat stomach make B. A, B, then C, and what comes after C? It's D. One man, one big fat stomach make D. A, B, C, and then D. Now kids, what is this? E. He says egg. And what comes after E? It's F. One man,
wearing hat, coat, and naughty boy F. A, B, C, D, E, F, and then G. Now what comes after G? It's H. One man, two men, hello, hello, make H. A, B, C, D, E, F, G, and H. Now I have done my work. Now it's your turn. Practice it well. Thank you. Hey kids, now this is time for Hindi recitation. So kids, today we will recite a Hindi rhyme, Lala Ji. So kids, stand up in your place wherever you are and let's start this poem. लाला जी ने केला खाया, लाला जी ने केला खाया, उसका छिलका वहीं गिराया. Kids, repeat after me. लाला जी ने केला खाया, उसका छिलका वहीं गिराया. तोन फुलाकर कदम बढ़ाया, तोन फुलाकर कदम बढ़ाया, कदम के नीचे छिलका आया, कदम के नीचे छिलका आया. लाला जी गिर पड़े धड़ाम, लाला जी गिर पड़े धड़ाम, मुंह से निकला हाय राम, मुंह से निकला हाय राम. किड्स, रिपीट वन मोर टाइम. लाला जी ने केला खाया, उसका छिलका वहीं गिराया, तोन फुलाकर कदम बढ़ाया, कदम के नीचे छिलका आया. लाला जी गिर पड़े धड़ाम, मुंह से निकला हाय राम. Kids, I hope you have enjoyed this rhyme. Thank you. Hey kids, welcome to next class and that is Hindi written. Kids, take out your Hindi notebook and open the page where I have done the setting of 23rd August 2020 and day is Sunday. Kids, हमने अपनी लास्ट क्लास में एक्सरसाइज करी थी और अ से उ तक वर्क किया था. अभी आज हम फिर से अ से उ तक लिखेंगे ताकि हमें ये अच्छे से लर्न हो जाए, अच्छे से हम इसका फॉर्मेशन कर सकें, बिल्कुल भी इसमें कंफ्यूजन ना हो. तो चलिए हम अ से लेके उ तक आज फिर से लिखते हैं. सबसे पहले छोटे अ से अनार से स्टार्ट करते हैं. छोटे अ से अनार. अभी बड़ा आ, बड़े आ से आम. क्या लिखा बच्चों हमने? बड़े आ से आम. अभी छोटी से इमली. छोटे आ से अनार, बड़े आ से आम, छोटी से इमली, बड़ी से ईख. छोटे आ से अनार, बड़े आ से आम, छोटी से इमली, बड़ी से ईख. बच्चों बड़ी से ईख के बाद क्या आता है? छोटे ऊ से उल्लू और छोटे ऊ से उल्लू के बाद बड़े ऊ से ऊन. तो छोटे अ से अनार, बड़े अ से आम, छोटी सी इमली, बड़ी से ईख, छोटे ऊ से उल्लू और फिर बड़े ऊ से ऊन. मीन्स कि हमने ये अल्फाबेट देखिए कितनी जल्दी कर लिया. अभी हमने प्रैक्टिस बहुत सारी करी तो हमने जल्दी वर्क कर लिया. आप भी इस तरह से अच्छे से कर पाएंगे और जल्दी वर्क कर पाएंगे और गलत फॉर्मेशन भी नहीं करेंगे अगर आप इसकी प्रैक्टिस और ज्यादा करेंगे तो. चलिए अब नेक्स्ट पेज पर आते हैं बच्चों. चित्र पहचान कर पहला अक्षर लिखो. कल हमने किया था बच्चों चित्र देखकर उसको उसके अक्षर से मिलाया था. अब हम आज क्या करेंगे? आज हमें अक्षर दिए ही नहीं गए हैं, हमें सिर्फ चित्र दिया गया है. हमें चित्र देखकर उसका अक्षर खुद से लिखना होगा. तो बच्चों चलिए पहचानते हैं कि पहला अक्षर कौन सा है, सॉरी पहला चित्र कौन सा है. ये क्या है बच्चों? बड़े आ से आम. अब बड़े आ से तो बड़ा हाथ बनाना आता है आपको. तो चलिए करते हैं. कर्ली वर्ली 3, 1 मैन, 2 मैन, हेलो हेलो, मेक अ हैट. ये क्या बन गया बच्चों? बड़े आ से आम. मैम आपको ये चित्र ड्रॉ करके देंगी, आपको यहाँ पर खुद से लिखना पड़ेगा. तो आपको इतनी प्रैक्टिस करनी है कि आप चित्र देखकर तुरंत उसका अक्षर माइंड में आ जाए आपके और आप यहाँ पर लिख दें. अभी नेक्स्ट क्या है? छोटे आ से अनार. तो हमने छोटे आ से अनार जस्ट उसी के सामने लिख दिया. अभी नेक्स्ट क्या है बच्चों? छोटा ऊ. छोटे ऊ से उल्लू. तो छोटा ऊ बनाएंगे. कर्ली वर्ली 3 एंड अप, मेक अ हेड. छोटे ऊ से उल्लू. अभी नेक्स्ट है बड़ी से ईख. 1 स्मॉल मैन मेक सी टर्न एंड टेल, 1 हेड एंड मेक सी. बड़ी से ईख. क्या है बच्चों? बड़ी से ईख. तो हमने बड़ी से ईख बना दिया. अभी लास्ट हमारा बचा है, ये क्या है बच्चों? छोटी से इमली. छोटी ई है इसलिए उसके ऊपर कोई क्राउन नहीं होगा, वो सिर्फ नॉर्मल उसका फॉर्मेशन कर देंगे. ये बन गई छोटी से इमली. तो बड़े आ से आम, छोटे आ से अनार
और छोटे से उल्लू, बड़ी से ईक और छोटी से इमली। इस तरह से हमने इसके सारे अक्षर पहचान कर लिख दिए। तो बच्चों आपको भी इस तरह से सेम वर्क अपनी नोटबुक में करना है। इसकी प्रैक्टिस अच्छे से करिएगा। थैंक यू। Hey kids, welcome to next class and that is maths written. Kids, take out your maths notebook and open the page where I have done the setting of 23rd August 2020 and day is Sunday. Kids, yesterday we have learned to draw the formation of 1, 0, 10. And today we are going to learn to write 1 to 10 counting. Means counting 1 to 10 under TO. आज हमें TO means tens and ones. बच्चों टेंस का मतलब होता है, टी का मतलब होता है टेंस और जीरो का ओ का मतलब होता है वंस। टीओ हमें जब टीओ के नीचे लिखना मीन्स के जो 1 डिजिट है वो वंस के नीचे लिखेंगे और जहां 2 डिजिट हो जाएंगे मीन्स 1, 0, 10 2 नंबर्स हो गए ना, तो वो हमें कहा लिखने होंगे टीओ के नीचे, मतलब 1 यहाँ और 0 इसके नीचे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमें पूरी 1 से 10 तक की काउंटिंग लिखनी है। 1 and what comes after 1? 2 and kids, as you all know that we have to touch the upper and bottom line both. 1 then 2 and curly burly 3, then what comes after 3? 4. One hand out पर पूरे इसमें 4. 1, 2, 3, 4. One small man, big fat stomach, wearing a hat. Make 5. 1, 2, 3, 4, 5 and what comes after 5? 6. Down, make C and close. 6. Then sleeping, slanting, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 and then 7. Make C, turn and join. 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. And what comes after 8? 9. One man, make C, lollipop, 9. और अब देखिए बच्चों, अब आपको क्या करना है, आपने 1 नंबर लिखे थे ना, सब हमने वंस के नीचे लिखे क्योंकि वो 1 नंबर थे। अभी हमारे पास 2 नंबर है क्योंकि मीन्स 2 नंबर है तो 2 ब्लॉक में लिखने हैं। तो 1 नंबर जो है वो मीन्स 0 जो लिखना है वो हम वंस के नीचे लिखेंगे और 1 जो लिखना है वो टेंस के नीचे लिखेंगे। 0 and 1। किड्स, आपको प्रैक्टिस भी इसी तरह से करनी है। अंडर टीओ मीन्स टीओ के नीचे आपको ये पूरा 1, 0, 10 प्रॉपरली ऐसे ही लिखना है। Okay, now I have done my work. Now I have come to the next page. Kids, you have to complete the formation of 10. So now I have done my work. Now it's your turn. Practice it well. Thank you. Hey kids, welcome back to your next class, and that is conversation, oral subject. So kids, as you all know that conversation is an oral subject, so you don't have to write anything in your notebook. You have to just learn it well. Okay, so kids, let's start. Today we are going to learn 2 questions about ourselves. Means हमें अपने बारे में 2 क्वेश्चन आंसर लर्न करने हैं। मतलब हमने अभी इससे पहले क्या पढ़ा था बच्चों? व्हाट इज योर नेम में आपने अपना नाम बताया था। इन विच क्लास डू यू स्टडी में आपने अपनी स्टडी बताई थी। इन विच क्लास डू यू स्टडी? दैट आई स्टडी इन क्लास प्ले ग्रुप और पीजी। तो आपने बताया था कि आप पीजी क्लास में पढ़ते हो। फिर हमने आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन किया था हाउ आर यू, तो आपने बताया था कि आई एम फाइन थैंक यू। मीन्स कि आप अच्छे हो। जब आपसे कोई पूछेगा कि आप कैसे, तो आप क्या बोलोगे कि हाँ, आप खुश होकर बोलोगे कि हाँ मैं बहुत अच्छा हूँ, थैंक यू, पूछने के लिए धन्यवाद। तो इस तरह से हमने 3 से 4 क्वेश्चंस लर्न कर लिए थे। सो नाउ वी आर गोइंग टू लर्न 2 other questions. Kids, in this conversation subject today you have to learn that if someone asks to you that what is your father's name, अगर आपके पापा का नाम कोई पूछता है तो आपको क्या बोलना है kids? You have to say that my father's name is. Firstly kids, you have to remember one thing, that
before your father's name you have to say Mr. It is needed, it is necessary that you have to say Mr. मतलब आपको अपने पापा का नाम बोलने से पहले मिस्टर लगाना है, क्योंकि वो आपसे बड़े हैं और आप उनके रिस्पेक्ट करते हो और आप उनका नाम खाली ऐसे नहीं ले सकते हो, तो आप उनके नाम से पहले क्या बोलोगे? मिस्टर। मीन्स आप उनके नाम से पहले मिस्टर लगा के तब उनका नाम बोलोगे। और पेरेंट्स आप उन्हें, बच्चों को, किड्स को अपना नाम, उनके फादर्स, मदर्स, सबका नाम याद करने में प्लीज हेल्प करिएगा, बिकॉज दे आर वेरी स्मॉल किड्स, तो वो खुद से लर्न नहीं कर सकते। आप उनकी हेल्प करिए, आप उन्हें फादर्स और मदर्स नेम लर्न कराइए अच्छे से। सो किड्स, if someone asks to you that what is your father's name, you have to say that my father's name is Mr. and then in the place of your father's name you have to say your father's name. Okay kids, so what is your father's name? My father's name is Mr. and then you have to say your father's name. And similarly kids, if someone asks to you that what is your mother's name, then what do you have to say? You have to say that my mother's name is, मतलब मेरी मम्मा का नाम है। उसके बाद आप क्या बताओगे? अपनी मम्मा का नाम बोलोगे और उससे पहले क्या बोलना है आपको? सबसे ज्यादा जरूरी है, ये आप कभी नहीं भूलोगे कि अपने पापा का नाम बताने से पहले आपको मिस्टर लगाना जरूरी है और अपनी मम्मा का नाम बताने से पहले आपको मिसेस लगाना जरूरी है। ओके बच्चों, बिना मिस्टर या मिसेस लगाए आप अपने मम्मी डैडी का नाम नहीं बोलेंगे। So kids, if someone asks to you that what is your mother's name, you have to say that my mother's name is Mrs. and in the place of your mother's name, you have to say or you have to tell your mother's name. Mrs. करके आप अपनी मम्मा का नाम बोलोगे। Just like if someone asks to me that what is your father's name, I will say my father's name is Mr. Dharmdev Dwivedi. Okay kids? And if someone asks to me that what is your mother's name, I have to say that my mother's name is Mrs. Neelam Dwivedi. And kids, similarly, you have to tell your father's and mother's name with Mr. or Mrs. So kids, learn it well and properly with Mr. and Mrs. Okay kids? Now your class is over. Thank you.